Hello class, welcome back. So this is our computer class, and in our last class we have finished our first chapter of computer. So in the first chapter of computer, we have studied about various generations of computer, है ना? We have read about various generations of computer. That means how computer technology shows remarkable improvement in its production. Okay, so there we have read that in first generation computers were very used, and vacuum tubes have been used there, and then in second generation what they have used, then in third generation, है ना? So like that. So while I was explaining first generations of computer, I have told you that the computer only understand machine language. Computer only understand machine language. Okay. Okay. So machine language means in first generations of computer, they were using only machine language. Machine language means machine language comprises of only of 0 and 1. ठीक है? Machine language means made up of only 0 and 1. Now, so in this chapter, in the second chapter, we are going to study about computer languages. Computer languages means different language that has been developed through years and that help the technology of computer to improve itself. Okay, so in this chapter we are going to cover computer language, category of programming language, low level language, high level language, and language processors. Okay, so let us start this chapter. So according to your book, a computer language is a special language understood by the computer. So what is a computer language? Computer language is a special language. Okay, computer language is a special language, and this language is only understood by computers. Okay, got it? Now, it consists of a set of words, symbol and code that is used to write a computer program. So, computer language is consist of symbol, words. Okay, they are used to symbol, words and codes to write a computer program. So everything we see on a computer, that works on a computer program only. Okay, now a program is a set of instructions given to a computer. Now what is a program? What is a program? A program is a set of instructions given to a computer. Okay, see. Now our next concept is we have to understand what is program. Okay, we have to understand what is program. So what is program? Program is a set of instructions. Program is set of instruction. मतलब कि कंप्यूटर को, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर cannot make its decision by its own, है ना? So we have to give instruction to it. So programs are set of instruction. मतलब कंप्यूटर को जो instructions हम देते हैं वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम. Now, a program is a set of instruction given to a computer to get a particular task. कोई particular task करने के लिए जो instructions हम कंप्यूटर को देते हैं उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम. Okay? Now, the process of writing a program is called programming. The process of writing a program is called programming. So what is the programming?
process of writing a program is called programming. Okay, so जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई हाउ टू डू अ सर्टेन टास्क, तो क्या यूज होता है, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम. एंड राइटिंग दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, जहाँ पे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखते हैं. फाइन. And the people who write a program are called programmers. Okay. Now, just as human understand a variety of spoken language, computer cannot understand these language. अच्छा देखो, जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात करती हूँ या आप मुझे जब रिप्लाई करते हो, वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता. वो लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ की बाहर की चीज है. कंप्यूटर वो लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता. तो जिस लैंग्वेज में आप मुझसे बात करते हो वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता. कंप्यूटर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है ना. कंप्यूटर और कुछ खास नहीं, सिर्फ 0 और 1 को समझता है. सारी चीज़ें जो भी, जैसे मैंने बोर्ड पे अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस लिखा, मशीन लैंग्वेज लिखा, तो वो सारी चीज़ें 0 और 1 में क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, और तब कंप्यूटर उन्हें समझ पाता है. सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है. कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज टू कैरी आउट देयर जॉब्स. कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है अपने काम को करने के लिए. दिस लैंग्वेज यूज बाइनरी डिजिट, but it is difficult for the programmer to write the program directly in terms of these digits. Therefore, some other computer languages has been developed in which writing programs is easier. देखो, after reading the text, I'm going to explain you the same. Now यहाँ पे 2 terms आए. पहला तो ये है बाइनरी डिजिट. ठीक है, फर्स्ट टर्म जो आया यहाँ पे, दैट इज बाइनरी डिजिट. तो हमें पता चला कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझता है. बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं, 0 एंड 1 को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं. ठीक है. बट सेकेंड थिंग क्या हुई, यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखी है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू राइट देयर प्रोग्राम डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दीज डिजिट्स. कंप्यूटर के लिए, मतलब प्रोग्रामर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता अगर उनसे कहा जाता कि भाई पूरा प्रोग्राम, कंप्यूटर पूरा वर्क जो है, कंप्यूटर का पूरा वर्क जो है वो आप 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखो. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक एग्जांपल दिया था कि सपोज अगर हमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ वर्क करना है, तो वहाँ पे हमें एक सिंपल सा जो वर्ड है मैंगो, इसको भी हमें 0 1 0 0 1 1, ठीक है, इस तरह के टर्म में लिखना पड़ता. ठीक है, 0 1 0 0 1 इस तरह के टर्म में हमें लिखना पड़ता. नाउ तो प्रॉब्लम क्या होती, देखो कितने सारे वर्ड्स होते हैं, है ना. देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड. अब सारे वर्ड्स की ऐसी कोडिंग लर्न करना तो ईजी नहीं है ना. हमें अपने नाम की लर्न करनी होती है. अगर उस टाइम के कंप्यूटर पे हमें वर्क करना होता तो क्या होता, हमें अपने नाम की कोडिंग लर्न करनी पड़ती. फिर क्या होता, भाई जितने नंबर्स थे, अब जैसे सिंपल नंबर 2 है, अगर एक नंबर हमने लिया 2 या 3, अब भाई इसको भी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता. इसको भी हमें क्या करना पड़ता, 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है ना. ओके, नाउ सी. अब इस तरह से तो हमें पूरी कंप्यूटर, मतलब जो भी हम काम करते वो कितना हेक्टिक हो जाता कि हमें तो पहले तो सबके प्रोग्राम्स के सारे जितने वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबकी बाइनरी कोड्स लर्न करनी पड़ती है. वो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. सबकी बाइनरी कोड लर्न करना तो डिफिकल्ट था ना. तो उसी को ईजी करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइम फेज पे आते गए. ठीक है. However, a computer cannot understand these languages directly. अच्छा देखो,
जो लैंग्वेजेस बने, जैसे इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कोबल, फोर्टन या हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात लिखी है कि कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस भी नहीं समझ सकता, कोबल फोर्टन भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता। सो सब स्पेशल सॉफ्टवेयर हैव आल्सो बीन डेवलप्ड, तो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किए गए हैं, जो कि क्या काम करते हैं, विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन अदर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। किसी और लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं उसे वो क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बात हमें पता चल गई कि कंप्यूटर 0 और 1 में ही वर्क करता है, वो कुछ और नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझ सकता है और बाकी कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग, नहीं सॉरी, लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, नाउ अब भाई देखो, लो लेवल लैंग्वेज के भी अंदर 2 लैंग्वेजेस आते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, ये दोनों क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, दीज बोथ लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो भाई पहला क्या आया, मशीन लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंडर में हम देख रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज के अंडर में आया मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। नाउ सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर में क्या आया, देखो इसमें आया प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोसीजरल, फिर सेकेंड इज नॉन प्रोसीजरल एंड थर्ड इज नेचुरल लैंग्वेज। अब देखना, इसके भी आगे ये लैंग्वेजेस भी आगे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा कि भाई कंप्यूटर लैंग्वेज 2 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड हुई, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये दोनों लैंग्वेजेस भी लो लेवल लैंग्वेज के कितने पार्ट हो गए, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज 2 पार्ट हो गए। अब क्या है, अब हाई लेवल लैंग्वेज के 3 पार्ट्स हुए, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विद लो लेवल लैंग्वेज। आज हम लो लेवल लैंग्वेज से शुरू करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की इतनी सारी लैंग्वेजेस में से वी विल स्टार्ट विद लो लेवल लैंग्वेजेस। Okay, so low level languages are written to run a particular computer and cannot be easily used on other computer। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है। एक कंप्यूटर के लिए वो लिखी गई, फिर जरूरी नहीं कि वो हर कंप्यूटर पे वो यूज हो जाए, है ना। देखो, लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, दे आर रिटन टू रन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, ओनली अ स्पेसिफिक कंप्यूटर, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे गेट यूज्ड ऑन द अदर कंप्यूटर्स ऑल्सो। ठीक है, अब भाई लो लेवल लैंग्वेज के अंडर में सबसे पहला कौन सा लैंग्वेज था, सबसे पहला लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मशीन लैंग्वेज। सो अ मशीन लैंग्वेज also called first generation language। ठीक है,
तो भाई मशीन लैंग्वेज को हम एक और चीज क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। देखो अब इसके बारे में हम नोट कर रहे हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओनली, है ना। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हुए वो मशीन लैंग्वेज को ही समझते थे। तो मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज अ लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। अब इस लैंग्वेज को किसी भी कंप्यूटर को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लैंग्वेज है, आप इसमें कोई कोडिंग करोगे तो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान होगा उसको समझना, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगाएगा। एंड सेकंड थिंग, इसके लिए कंप्यूटर को किसी तरह की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, मान लो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो हम हिंदी में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें किसी भी तरह की ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड अ ट्रांसलेटर। लेकिन आपने कभी ना कभी देखा होगा, जब हमारी कंट्रीज में टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ एक गाइड होते हैं। वो गाइड क्या करते हैं, वो गाइड उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो कोई टूरिस्ट है, किसी इंडियन से बात कर रहा है, तो वो गाइड क्या करेगा, ही विल वर्क लाइक अ ट्रांसलेटर। वो एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, उसी तरह कंप्यूटर में भी जब हम जीरो एंड वन में कोई कोडिंग करते हैं, मतलब जब हम कोई कोडिंग मशीन लैंग्वेज में करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज के लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। It refers to 0 and 1 that a computer can understand as a instruction. Due to this reason, it is also called low level language. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब इसके लिए आपको किसी और लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ट्रांसलेटर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। सेकेंड थिंग, इस लैंग्वेज में एक चीज और अच्छी क्या है, इस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है ना। इस लैंग्वेज में एक चीज और अच्छी क्या है भाई, इस लैंग्वेज की प्रोसेसिंग अच्छी है। इस लैंग्वेज में जो भी चीजें हम लिखते हैं उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसी की आवाज अभी हमें सुनाएगी। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ये हमने पढ़ा। तो अब लिमिटेशन मतलब क्या होता है, मशीन लैंग्वेजेस में क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स रन ओनली ऑन द कंप्यूटर फॉर विच दे हैव बीन डेवलप्ड। तो मशीन लैंग्वेज काम करते हैं उन्हीं कंप्यूटर्स के लिए जिनके लिए वो बने होते हैं। ओके, सो दे आर व्हाट, दे आर मशीन डिपेंडेंट। दे आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट में जैसे कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, अब उस लैपटॉप की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होंगी। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती थी कि जिस कंप्यूटर के लिए बनी है वो उसी कंप्यूटर पे यूज़ होती थी, उसके अलावा वो और किसी कंप्यूटर पे यूज़ नहीं होती थी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाई वी कॉल देम मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज? वी कॉल देम मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज दे रन ओनली ऑन द कंप्यूटर दे हैव बीन मेड फॉर। ठीक है, Now next is machine language program are not portable to other computer। वही बात हो गई फिर से कि they are not portable, we cannot copy the same code to other computer also। हम क्या करते हैं, हम सेम कोड दूसरे पे कॉपी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गई मशीन लैंग्वेज की बात। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अब अगला क्या है, नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। Next thing that we are going to study is assembly language. See,
लैंग्वेजेस वैसे ही काम करती हैं जैसे हम अपने यहाँ यूज करते हैं। जैसे हम आपसे हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, आप अपने घर में हो सकता है किसी और लैंग्वेज में बात करते हो, तो कंप्यूटर के लिए भी लैंग्वेजेस उसी तरह यूज होती है, बट धीरे धीरे इनके फॉर्म्स बदलते गए। काम को आसान करने के लिए इनके फॉर्म्स बदलते गए। सो नेक्स्ट इज सेकेंड थिंग इज second generation language, that is assembly language. So assembly language is also termed as, assembly language को हम और क्या बोलते हैं, we call it second generation language, ठीक है, इसको हम second generation language भी कहते हैं। Why we call it second generation language? We call it second generation language क्योंकि ये second generations के जो कंप्यूटर आए उसमें ये यूज हुए थे। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे तो उसमें ये यूज हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज an assembly language uses letter and symbol instead of using number 0 and 1. So instead of using 0 and 1, assembly language क्या यूज करती है? Instead of using 0 and 1, assembly language यूज करती है letters and symbols. Letters और symbols यूज करती है, ठीक है, ठीक है। For example, it use A for addition, जैसे कि इसने अपने आप को सिंपल कैसे किया, जैसे instead of writing add और addition, इसका मतलब हो गया A फॉर एडिशन, ठीक है। नाउ सेकेंड इज C फॉर कंपैरिजन। अब C हमने कहीं पे लिख दिया तो C का मीनिंग क्या हो गया? C का मीनिंग हुआ कंपैरिजन। ओके, नाउ थर्ड इज उसी तरह जैसे कि L की मीनिंग हो गई लोडिंग। What does it mean कि सेकेंड लैंग्वेज कंप्यूटर, सेकेंड लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज क्या करती थी? असेंबली लैंग्वेज यूज करती थी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर ये यूज करती थी, ठीक है। तो अब तक हमने कितने लैंग्वेजेस पढ़े? फर्स्ट वी हैव रेड अबाउट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम एक और चीज क्या बोलते थे? दे आर मशीन डिपेंडेंट, दे यूजेस बाइनरी कोड। बाइनरी कोड स्टैंड फॉर, बाइनरी नंबर से स्टैंड फॉर 0 and 1। देन हमने पढ़ा second assembly language, that is second generation language. This second generation language means these are low level programming language, ठीक है। अब ये क्या थी भाई? ये थी low level programming language थी। एंड assembly language क्या यूज करती थी? letter and symbol यूज करती थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं assembler. Assembler is not a term basically. Assembler is a program. It's a program, है ना? It's a set of instruction. Assembler. अब भाई assembler क्या है? Assembler एक तरह का प्रोग्राम है। Assembler is a program, ठीक है। सो assembler is a program used to translate assembly language into machine language. फिर से एक चीज समझो, कंप्यूटर अभी भी कोई और लैंग्वेज नहीं समझता है, उसे किसी तरह के प्रोसेसर की जरूरत होती है 0 and 1 के अलावा कोई और लैंग्वेज समझने के लिए। तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। It works as a translator. It works as a translator to translate. It works as a translator to translate assembly language to machine language, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है कि भाई ये असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों? सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इजी, ठीक है। देखो, an assembler is a program used to translate assembly language into machine language
It used to simplify the work of computer and it helps computer to understand the concept very easily. Okay, so this is it about low level languages. अब भाई लो लेवल लैंग्वेजेस की एक बार रिवीजन कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लो लेवल लैंग्वेजेस के 2 टाइप्स हो गए. पहला हो गया मशीन लैंग्वेज एंड नेक्स्ट हो गया असेंबली लैंग्वेज. 2 लैंग्वेजेस हो गए, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ये 2 लैंग्वेज हो गए भाई. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 एंड 1 था. मशीन लैंग्वेज क्या था? ये सिर्फ 0 एंड 1 को समझता था. असेंबली लैंग्वेज क्या था? एक लेवल एडवांस था. ये क्या करता था? डिफरेंट कोड्स को रीड करता था. मतलब डिफरेंट, जैसे C फॉर कंपैरिजन हो गया, A फॉर एडिशन हो गया, इस तरह करके इसने शॉर्ट कोड्स बना रखे थे. अब एक और टर्म हमने पढ़ा, दैट इज एक और टर्म पढ़ा असेंबलर. असेंबलर का क्या था? असेंबलर का काम था ट्रांसलेट करना असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को हम बोलते थे असेंबलर बोलते थे. ठीक है, इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, सो बिफोर मूविंग अहेड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, पहले एक चीज इधर देखिए. असेंबलर क्या था? एक तरह का प्रोग्राम था. ठीक है, इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर. असेंबलर किसकी तरह वर्क करता था? एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता था. और ये क्या करता था? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता था? कन्वर्ट करता था. ठीक है, इसका छोटा सा यही काम था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज हाई लेवल लैंग्वेज. तो भाई अब इस लैंग्वेज में क्या था? अ हाई लेवल लैंग्वेज हैव इंस्ट्रक्शन विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. So in high level languages they have been using instruction that are very much similar to the English language used by us. मतलब जैसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं वही लैंग्वेज. तो इससे हुआ क्या? इससे क्या हुआ? प्रोग्रामर्स का और यूजर का काम आसान हो गया. अब क्या था? कंप्यूटर उसी लैंग्वेज में अब क्या था कि कोडिंग जो लिखी जाती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती थी, जो कि बहुत सिंपल होती है. सिंपल एज ए, क्योंकि वो हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज है, इस वजह से वो हमारे लिए उसको प्रोग्राम करना आसान होता था. कंप्यूटर अभी भी उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में ट्रांसलेट करके ही समझेगा. हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे. सो हाई लेवल लैंग्वेज हैज एन इंस्ट्रक्शन विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड बाय अस. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ठीक है, तो पहली बात हाई लेवल लैंग्वेज में एक अच्छी बात हमें क्या पता चली? दैट इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली था. ठीक है ना. सेकेंड थिंग, एंड इट रिप्रेजेंट लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड बाय अस एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो सिमिलर थी. किसके सिमिलर थी? इंग्लिश लैंग्वेज के. ठीक है, फाइन. तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर थी. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए बना था ट्रांसलेटर. असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बना था ट्रांसलेटर. अब यहाँ पे यूज होता था इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट लेटर. सो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज इट्स इंडिपेंडेंस. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एंड ऑलमोस्ट. अच्छा, इंडिपेंडेंट मतलब कहने का ये कि जैसे पहली फर्स्ट लैंग्वेज थी हाई लेवल मशीन लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में क्या हुआ? वो लैंग्वेज हम जिस कंप्यूटर के लिए यूज करते थे, जिस कंप्यूटर के लिए वो कोडिंग लिखी गई, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में हम यूज कर पाते थे. उसके बाद के किसी कंप्यूटर में हम उसको यूज नहीं कर पाते थे. ठीक है, उसके बाद या हम चाहें कि सेम कोड हम किसी और चीज में लिखें तो ऐसा
नहीं होता था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था, सेम कोडिंग सारे कंप्यूटर्स के लिए लिखी जा सकती थी थोड़े चेंजेस के साथ। सो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज इट्स इंडिपेंडेंस। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर विदाउट एनी चेंज। बिना किसी चेंज के सारे कंप्यूटर्स पे ये सेम प्रोग्रामिंग रन की ही जा सकती थी, ठीक है। नाउ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर टू प्रोग्राम्स। सो अगेन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर दीज आर टू प्रोग्राम्स। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या थे, ये दो प्रोग्राम थे। दे आर यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करते थे, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या करते थे, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते थे मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि बात अभी भी वही है, कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज समझता है, 0 और 1। तो अब हमने क्या किया, हमने लैंग्वेजेस बना ली कि भाई प्रोग्रामिंग हम इस कोडिंग हम इसमें करेंगे, कोडिंग हम इसमें करना शुरू कर दिए नॉर्मल लैंग्वेजेस में। फिर क्या हुआ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई इनपुट दिया लाइक 2 + 2। अब क्या हुआ, इंटरप्रेटर हुआ और वो इनपुट कहाँ गया, प्रोसेस हुआ। तो वो प्रोसेस कहाँ हुआ, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के पास वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो आउटपुट आया वो किस में आया, मशीन लैंग्वेज में आया, ठीक है। सो देयर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर, अभी मैंने बताया था, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज, 3 थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर है। जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ या इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सिमिलर थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब प्रोग्रामर्स के लिए ये काम आसान हो गया कि भाई एक ही लैंग्वेज, एक ही कोडिंग करनी है, वो हम हर कंप्यूटर में वर्क कर लेंगे, हर कंप्यूटर में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इतना हमने आज यहाँ तक हाई लेवल लैंग्वेज तक पढ़ा। ना नेक्स्ट क्लास अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।